بہاول نگر ضلعی پولیس افیسر کی ہدایت پر نیو ایئر نائٹ کے موقع پر سال کے آخری دن منشیات فروشوں اور قانون شکن افراد کے خلاف بھرپور کارروائی۔ گزشتہ ایک ہی دن میں شراب فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 19 مقدمات درج، ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 9 چالو بھٹیاں، 804 لیٹر شراب، 301 لیٹر لہن برآمد۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر آتش بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 مقدمات درج۔ آتش بازوں کے خلاف کارروائی کے دوران نجی کیفے ڈوزی کا مینیجر بھی گرفتار۔ سامان آتش بازی برآمد۔ اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 مقدمات درج، 2 پسٹل مار رود برآمد۔ ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ سرگودا 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیے جانے والا 14 ماہ کا بچہ 42 گھنٹوں میں برآمد کر لیا گیا۔ ضلع خوشاب کے تھانہ جوہر آباد کے علاقہ ہرڈالی سے نامعلوم ملزمان نے 14 ماہ کے کمسن بچے کو اغوا کر لیا۔ کمسن مغوی کا والد روزگار کے لیے جنوبی افریقہ گیا ہوا ہے۔ RPO فیصل رانا جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے 42 گھنٹوں میں کمسن مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ماہرانہ پروفیشنل پولیسنگ پر IG پنجاب کی RPO فیصل رانا کو شاباش۔ DHQ چیچا وطنی اسپتال کا عملہ مریضوں کے ساتھ منہ زور ہونے لگا۔ دور دراز گاؤں سے سفر طے کر کے اسپتال آنے والے مریضوں اور ان کے ورثاء کے ساتھ حد تک امیز رویہ معمول بن گیا۔ عمر رسیدہ زخمی 100 سالہ خاتون کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ MSTHQ اسپتال ڈاکٹر کاظم حیات وتھرا نے واقعے کے بعد سائل کی درخواست پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ میرا نام جی حاجی محمد رمضان ہے، 176 نال ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत ਦੀ जी। ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر زراعت چودھری محمد ارشد نے اپنے عملے کے ہمراہ چشتیاں نہر فوروا کے نزدیک نجی گودام میں کھاد کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے اسٹال لگوا دیا، جو کہ کھاد ڈیلر انتظامیہ کی زیر نگرانی کثیر تعداد میں کسانوں کو کھاد فراہم کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نثار احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ چشتیاں گزشتہ روز کسانوں کو کھاد نہ ملنے پر درپیش مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر زراعت چودھری محمد ارشد نے اپنے عملے کے ہمراہ کھاد کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے اسٹال قائم کر کے کسانوں میں کھاد تقسیم کروانے کا عمل جاری کر دیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر زراعت چودھری محمد ارشد نے میڈیا کو بتایا، یوریا کھاد کا شدید بحران ہے اور ذمہ دار کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن تحصیل چشتیاں میں ہم اپنے انتظامیہ کے ساتھ مل کر ذمہ داروں کو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ کے مطابق کھاد مہیا کر رہے ہیں۔ جیسے بھی ہمیں مطلب سپلائی میسر ہوتی ہے، ہم ذمہ داروں کو گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق ان کو کھاد سپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ کھاد ڈیلر کا کہنا تھا جو ہم کھاد منگوائی تھی وہ ہم نے متعلقہ انتظامیہ کی نگرانی میں کسانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کھاد کو حل کرنے کے لیے ہم نے جو کھاد بک کروائی تھی وہ اس کو سب کی نگرانی میں، محکمے کی نگرانی میں جو ہے کسانوں کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں۔ ٹرک کو کھڑا کیا ہوا ہے، ٹرک کو کھڑا کر کے تمام انتظامیہ کے سامنے کھاد کو کسانوں کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ کسانوں کو کوئی بھی مشکلات نہ آئیں۔ اگر کوئی مشکلات آئیں گی تو ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ آج اور کل اور پرسوں میں 2000 بوری ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے یوریا اور گوارا کی۔ اگلے آنے والے دنوں میں بھی ڈیلی بیسس پہ جتنی کھاد آتی جائے گی وہ انشاءاللہ کسانوں کی دہلیز تک پہنچے گی۔ ہمارا منافع خوری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے سر، میاں چنو سے تعلق رکھتے ہیں، میاں چنو سے یہاں پر کسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں سر۔ کسانوں نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ زراعت اور متعلقہ انتظامیہ کے اس عملی اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نثار احمد بھٹی، TNN نیوز چشتیاں۔
तहसील चौबारा कपूरी चेक पोस्ट चौबारा के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी, ड्राइवर समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुसाफिर बस तहसील के रोड से सियालकोट जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 मुसाफिर बस चीमा बरादर बस नंबर FDS 7833 करोड़ से सियालकोट जा रही थी, जिसमें तकरीबन 60 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद THQ तहसील चौबारा मुंतकिल कर दिया। जाफराबाद में सुन्नतों भरा शख्सियाती इज्तिमा का एहतमाम मीर मोहम्मद अली खोसा की रिहाइशगाह पर किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने खिताब किया। शख्सियात इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए दावत इस्लामी के रुकन शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने फ़िक्र आखिरत के मौजू पर बयान फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर रोशनी डाली। शख्सियात इज्तिमा में मुल्क व कौम की सलामती के लिए नेक खुसूसी दुआ मांगी गई। इज्तिमा में SSP जाफराबाद सरदार हसन मूसा खेल समेत सरकारी मुलाजमीन, इलाकाई रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। जैकबाबाद में एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 120 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ज़ियाउल सलाम पठान की सरबराही में खुफिया इत्तला पर बाईपास ज़रई कॉलेज करीब चेक पोस्ट पर बलोचिस्तान से आने वाले ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के खुफिया खानों में छुपाई गई 120 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाली मुनशियात सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल फूड गंदम की पैदावार बलोचिस्तान में हर साल कम होती जा रही है। ज़रई इलाकों में कहीं पानी की कमी तो कहीं यूरिया खाद न मिलने की सूरत में काश्तकार परेशान रहते हैं। आइए किसानों की मुश्किलात और मसाइल पर देखते हैं जाफराबाद बलोचिस्तान से मिस्री बुगटी की ये रिपोर्ट। वैसे तो गंदम दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल फूड है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई और उगाई जाती है। इंसानी आबादी में इजाफा के साथ गंदम की खपत में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस गंदम की पैदावार की तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बलूचिस्तान की ग्रीन बेल्ट में शामिल ज़िला जाफराबाद को ज़राअत के हवाले से गो न गो मसाइल का सामना रहता है, जिसमें शाली के वक्त पानी का बहरान तो अब गंदम के मौसम में सोना यूरिया नापैद हो गया है, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। सर सारी के टाइम जो है ना पानी नहीं था, कोई फसल नहीं हुआ। अभी जो है ना गंदम का असर था तो गंदम का यूरिया छाटा नहीं मिल रहा है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। तो अभी गरीब हम कहाँ जाए, तो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि ये मसला हल किया जाए। तो गंदम भी नहीं होगा तो फिर हम क्या खाएंगे सर। ये चावल का टाइम हमारे पास जो है पानी का बहुत किल्लत है, पानी नहीं देख रहे हैं हम। ये गंदम का टाइम पानी होता है तो अभी हमने ये गंदम किया तो अभी यूरिया भाड़ नहीं मिल रहा है। ज़राए के मुताबिक यूरिया खाद की मसनूई किल्लत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कुछ ट्रक ट्रालों को पकड़ कर तहकीकात शुरू की है, ताहम पुलिस की जानब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बलूचिस्तान किसानों को सहूलियात मैसर करके ज़राअत के शोबा को तबाही से बचाए, ताकि आने वाले दिनों में अवाम को खुराक की कमी का सामना करना न पड़े। मिस्री बुगटी, TNN जाफराबाद। अंगू इलाका करबोगा शरीफ में पुलिस के हाथों मुबैना शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। शहरी के कत्ल के खिलाफ वरसा और इलाका अवाम का दवाबा बाजार में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने थाना दवाबा के सामने लाश सड़क पर रखकर मेन GT रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खैरपुर टामे वाली और गिरदो नवा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कंट्रोल रेट पर खाद न मिलने पर काश्तकारों ने डीलरों और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। नया साल भी काश्तकारों के लिए अच्छी खबर नहीं लेके आया। खैरपुर टामे वाली और गिरदो नवा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की खरीदारी के लिए किसान जलील ख्वार हो गए। खाद डीलरों ने खाद मन माने रेट्स पर फरोख्त करना शुरू कर दी, जिस पर काश्तकारों का एहतजाज करते हुए कहना था कि खाद माफिया कंट्रोल रेट की बजाय मनपसंद अफराद को ब्लैक में खाद फरोख्त कर रखे गए। 1800 खाद 2500 में सेल कर रखे गए और डीलरों के मजे, जबकि इंतजामिया ने चुप साध ली है।
बावल नगर शहर भर में दर्जनों गैस सिलेंडर चोरी होने का मामला। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों से दर्जनों गैस सिलेंडर चोरी करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। शहरी अरसा दराज से गैस सिलेंडर चोरी करने वाले मुलजिम की तलाश में थे। मदनी कॉलोनी में चोरी किया हुआ गैस सिलेंडर फरोख्त करने आया तो शहरी ने पकड़ लिया। पकड़े गए गैस सिलेंडर चोर का नाम सफदर है और मदीना टाउन का रिहायशी है। गैस सिलेंडर चोरी करने वाला चोर सिलेंडर चोरी करने का माहिर बताया जाता है। सिर्फ 3 गैस सिलेंडर ही चोरी किए हैं। पकड़े गए चोर का इतराफ। शहरियों ने पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। आज सुबह ये शख्स मेरी दुकान से गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया था। ताजिर मुर्तजा का बयान, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों की तादाद में गैस सिलेंडर चोरी कर चुका है। ताजिर मुर्तजा पहले भी कई बार पुलिस के हवाले किया था लेकिन पुलिस छोड़ देती है। मुर्तजा का मौक़िफ़, मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद ने मुलज़म को पहचान लिया। शुजाबाद की तारीख में पहली बार व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का इनेकाद किया गया। व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट मैच के मौके पर रुकन सूबाई असम्बली राना एजाज अहमद नून, सदर बार एसोसिएशन राना मोहम्मद यूसुफ नून, सियासी और समाजी रहनुमाओं और आवाम ने भरपूर शिरकत की। बक्कर मिनी बजट से आम आवाम पर महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। नए साल के आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई अशिया को पर लग गए। मजीद बता रहे हैं बक्कर से मार इरशाद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही तमाम रोज़मर्रा खुर्दोनोश की अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दालें, मसाला जात सब महंगे हो गए हैं। महंगाई ने बहुत अखीर कर दिया है। बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म के रिक्वेस्ट है कि वो हर चीज़ की कीमतें कंट्रोल करे। जब वो किसी चीज़ का अपना नोटिस लेता है वो हर चीज़ महंगाई हो जाती है। दालें गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हैं, सब्जियां पहुंच से बाहर हैं। बराए मेहरबानी कुछ गरीब आदमी पर तरस खाएं। गरीब आदमी बहुत। बक्खर के शहरियों का मजीद कहना है कि तब्दीली सरकार अलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगो दाम माल खरीद कर हम सस्ता कैसे बेचें। कैमरामैन टीम के साथ मैं शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ। जज्बाबाद नए साल का नया पैकेज महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चीनी, आटा, घी, दाल महंगी होने से आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस पर TNN न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद हम टावर रोड पर। महंगाई की वजह से हर चीज़ यहाँ पर महंगाई हो गई है। खाने पीने की, चीनी, दाल, घी, हर चीज़ महंगी हो गई। हमारे साथ दुकानदार और ग्राहक मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। महंगाई की तो हद हो गई है। यकीन करो इतनी महंगाई हो गई है कि खरीदने आ रहे हैं कि वापस घर जा रहे हैं। क्या खरीदें? गुड़ महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, लाल दाल है, मार्शल दाल है वो डबल महंगी हो गई है। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि ऐसा पैकेज निकाले कि मसला आवाम का हल हो। ये क्या कर रहे हो? आवाम आपके लिए बहुत परेशान है। क्या करे आवाम? खाने पीने की चीज़ें में इतनी महंगाई ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई है। मैं इमरान खान को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे खुदारा तुम आवाम की देखो, ऐसा पैकेज निकालो कि आवाम के मसले हल हो जाएं। कारोबार तो मुतासिर हो चुका है ना, क्या बोलेंगे सही। कारोबार है कहाँ? हर बंदा परेशान है। आटा 70 रुपये किलो, कहाँ से गुजारा होएगा। चीनी अभी पहुंची है 90-95 रुपये। दालें 200 रुपये किलो, चावल 250-200 रुपये किलो तक पहुंच गए। जुल्म नहीं है तो और क्या है। बंदा मार्केटें खाली लगी पड़ी हैं आपको। अभी तो पूरा ही नहीं हो रही है सर। सफ़ेद पोश वाले की बिल्कुल जलील हो रहे हैं। बिल्कुल दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, हर चीज़ महंगी है इस दौर में। नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान। ये तो पुराना पाकिस्तान भी चला गया हमसे, समझे। वो पुराना पाकिस्तान सही था वैसे। महंगाई की वजह से ये है कि सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। आम आदमी खरीदने पर मजबूर हो गया है कि कहाँ जाए। कोई भी बंदा कुछ भी नहीं खरीद रहा है। फिर रेट जब पूछ के चला जा रहा है, वो सारी रेट की वजह से। आटा देखो 100 रुपये मन बढ़ गया है फिल, और वो मिर्चों के दाम बढ़ गए हैं। सारी खाने पीने की अशियाएँ बढ़ी हुई हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम फारिग बैठे हैं, और कोई मसला नहीं है। हम इमरान खान से अपील करते हैं कि आगे से रेट कम करें। तो जिस चीज़ का वो नोटिस लेता है वही चीज़ बढ़ जाती है, तो हम क्या उस पर यकीन करें। उसका यही एक कहना है कि घबराना नहीं, बस बाबा घबराना है हमें।
हमें आप आए तो सही मार्केट में ना, मार्केट में तो आए, आप देखें तो सही ना। जैसे कि आपने दुकानदार की बात और ग्राहक की बात सुनने का ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल की जाए, चीनी दाल घी हर चीज़ कंट्रोल की जाए, जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा मैन अब्दुल हमीद गौंदल के साथ जायद खरल, TNA न्यूज़, जैकोबाद। कारोबार को वुसअत देने के लिए कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदर पीर कामरान शाह पुरज़्म है कि इफ्तिताह के मौका पर वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मज़ीद जानते हैं। जी मलिक। शुक्रिया। कोहाट में तजारत के हवाले से बेशुमार मौक़े पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो सदर हैं पीर कामरान शाह साहब के पास मौजूद हैं। इन्होंने आज एक इफ्तिताह किया है। उस इफ्तिताह में ज़ली नाज़िम जो हैं कोहाट के मौलाना कारी शेर ज़मान साहब वो भी आए थे और गोहर सैफुल्लाह खान भी आए थे और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इन्होंने बुलाई थी और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोहाट में कारोबार जो है उसको मज़ीद वसअत दी जाए और कारोबार का मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों और कोहाट की आवाम इससे फ़ायदा हासिल करे। हमारे साथ पीर कामरान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से उनके दीगर जो क्या ख़यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब आप ये बताएं कि प्रॉपर्टी के हवाले से आपके जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। आपकी कोशिश है कि कोहाट की आवाम को कारोबार के मौक़े दिए जाएँ, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा मकसद है, जो हमारी सोच है वो ये है कि अव्वल तो कोहाट में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए और कोहाट तरक्की करे और कोहाट में बिज़नेस ज़्यादा हो, कोहाट में प्लाज़े बन जाए। इवन कि यहाँ बस अफसोस की बात है कि कोहाट में एक ऐसी अस्पताल नहीं है जो RMI JCU या नॉर्थ वेस्ट JCU जो हमारे कोहाट के आवाम उससे फ़ायदा ले सके, हंगू आवाम उससे फ़ायदा ले सके, लेकिन ऐसी कोई बेसिक सहूलियात जो है वो उससे कोहाट में रूम है। तो इस वजह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोहाट तरक्की करे। जब एक शहर में कारोबार ज़्यादा हो, कारोबार तरक्की करती है तो इससे बेरोज़गारी ख़त्म होती है और इंशाअल्लाह तो इसी हवाले से हमारी ये कोशिश है कि कोहाट प्रॉपर्टी फील्ड में बल्कि हर फील्ड में तरक्की करें। अच्छा पीर साहब आप ये बताएं कि यहाँ पर इंतकालात बंद है ज़मीनों के, तो इस हवाले से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आप हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? उस दिन भी हमने DC साहब से टाइम लिया था, लेकिन वो पेशावर में थे। उसने कहा कि जब मैं कोहाट वापस आऊँ तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इसी हवाले से कि कोहाट में इंतकालात बंद है, जिसकी वजह से यकीन करें कि दुश्मनियाँ पैदा हो रही हैं। इंतकालात ना होने की वजह से लोगों के अरबों रुपये करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं, तो इसकी वजह से झगड़े मसाइल और दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। तो मैं ये इंतज़ामिया से, EC साहब से, DC साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कोहाट में इंतकालात की पाबंदी ख़त्म की जाए। इससे बहुत बड़ा नुकसान रेवेन्यू को हो रहा है, हुकूमत के ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें तो इस साल जो इंतकालात बंद हुए इसकी वजह से 94 लाख रुपए रेवेन्यू को आए और इससे पहले जब इंतकालात खुले थे तो उससे 5 करोड़ रुपए आए थे रेवेन्यू को। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि कितना बड़ा नुकसान है, हुकूमत को भी नुकसान है और आवाम को भी नुकसान है। जी बिल्कुल, आपने पीर कामरान शाह की बातें सुनी। मैं आपको साथ साथ यही बताता चलूँ तो ये खाली कोहाट की बात कर रहे हैं कि कोहाट में 94 लाख रुपए रेवेन्यू को आए हैं, जबकि पिछले जो थे सीज़न था उसमें 5 करोड़ रुपए आए थे। तो अब हुकूमत को भी चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, जो पूरे पाकिस्तान में इंतकालात खोले जाएँ ताकि रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका शाहपुर लमा में दुआ फातिमा फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 400 से ज़ायद मरीजों को चेक किया गया। कैंप में सीनियर मेडिकल ऑफिसर निश्तर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद फैसल समेत जलालपुर पीरवाला के डॉक्टर्स ने भी मरीजों को चेक किया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान CEO दुआ फातिमा फाउंडेशन सलमान मुनव्वर और दीगर का कहना था कि दुआ फातिमा फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम इस कैंप को लगाने का मकसद लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने के साथ साथ तमाम किस्म के मेडिकल चेक और टेस्ट की सहूलियात दी जाएँ। महंगाई के इस दौर में आम आदमी बड़े अस्पतालों के महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमारी कोशिश है कि हर सतह पर आवाम को मेडिकल सहूलियात मुहैया की जाएँ। इंशाअल्लाह खिदमत का यह सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहेगा। दुआ फातिमा फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल कैंप का जो इनकाद किया गया है, ये हमारा दरियाई इलाका है, गरीब अवाम है, यानी ये नहीं जा सकते वहाँ पर, ना ही पे कर सकते हैं मेडिसन के लिए और ना ही जो है ना इनको सेहत की सहूलत मुयसर है। तो इस सिलसिले में पहले भी
हमारी इस फाउंडेशन ने काफ़ी अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में किया है। आज जो है ना शाहपुर लम्मा में ये हमारा दरियाई इलाका है, बेट का इलाका, यहाँ पर कैंप हुआ। आज हम डॉक्टर्स की टीम, माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल और निश्तर से मैं रजिस्ट्रार हूँ, आई एम डूइंग स्पेशलाइजेशन विद देयर। यहाँ पे हम आज आए हुए हैं, शाहपुर एक विलेज है, दिस इज़ जस्ट एट द बैंक ऑफ द रिवर पंजाब, रिवर चनाब, ठीक है। ये गाज़ीपुर एक यूनियन काउंसिल है, उसका एक विलेज है। यहाँ पे मैं, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब और बाकी जो टीम है वो हम लोग यहाँ पे बड़ा एफिशिएंटली कैंप कर रहे हैं। दुआ फाउंडेशन के थ्रू जो ना इतना कैंप लाया गया, मेडिकल कैंप, और माशाल्लाह इन टाइम दी 400 मरीज़ों का चैकअप थी चुकी है और फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई है, फ्री चैकअप भी किया गया है।